ओके, हरे कृष्णा। तो आज पढ़ना है हमें श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 16। श्लोक दोहराएंगे। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वाधाहम औषधम मंत्रो अहमेव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वाधाहम अहमौषधम। अहं कर्तृ अहं यज्ञ स्वादाहम् अहम् औषधम्। मंत्राहम अहमेवाज्यम अहमग्नि अहम हुतम। मन्त्रम् अहम् एवाज्ञम् अहम् अग्निरहं हुतम्। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधाहम अहमौषधम। अहं कर्तृरहं यज्ञ स्वदाहम् अहम् औषधम्। मंत्रः अहम अहमेवाज्यम अहमग्नि अहम हुतम। मन्त्रोऽहम् अहम् एवाज्ञम् अहम् अग्निरहं हुतम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में, वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। Okay, so anyone want to share something from this verse? Yes, हार्दिक प्रभु, कैमरा ऑन कर लीजिए। Proji, 1 minute, Proji. Then. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Proji. हम्म। Prabhuji, as in Srimad Bhagavatam, it is stated that the one who is chanting the holy name or performing devotional service of the Lord, it is to be understood that in the previous lives he performed all the kinds of sacrifice and austerities, and that is why he reached the position of chanting the holy name. So here Srila Prabhupada is saying in the purport that. In the last line, especially, or another word, those who are engaged in rendering devotional service unto Krishna are to be understood to have performed all kinds of sacrifices recommended in the Vedas. हम्म। So, in Vedas, there are different kinds of sacrifices mentioned, and they're meant to satisfy different demigods. So, Srila Prabhupada says that all those demigods are only administrative demigods. But in every yajna, even if you're performing worship to Indra or Chandra also, those Indra and Chandra, they will offer the main result to Vishnu. That's why he is also known as Yagna Purusha. And the object of that Yagna is also Vishnu, and the paraphernalia of the yagna is also Krishna, as it is stated. The fire is Krishna, butter is Krishna, offering is Krishna, herbing, I mean, healing herb is Krishna. So, in one fact, in one word, what I understood is, Prabhuji, without Krishna, you can't even perform sacrifices. And to whom the sacrifices are to be performed is also Krishna. So, it's everywhere it is Krishna, 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 only, Prabhuji. This is only what I understand. जय। And here one thing is stated that Krishna is also the fire. हम्म। So we can understand how important is fire, Broji, in especially in today's modern world, where fire is also used for manufacturing different automobiles and industries. So that is also important in modern civilization. It also important to perform all kinds of yagna. Like nowadays, the karma kandis, they perform so much of yagnas. So they don't know that the paraphernalia, butter and fire, without them they can't perform any yagna.
So that is also Krishna. So basically, it is only Krishna who is helping us to perform that yagna to satisfy particular demigod. And as we discussed, that only after that demigod is satisfied by the yagna, that demigod will go to Krishna and ask for sanction, and then only the desires will be completed. So indirectly, everyone is worshipping Krishna. So this is what I understood. जय। ओके, यस, नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को ऐसे समझ में आया कि जैसे इससे पहले मेरे को ऐसे लगता था, जब मैं इस्कॉन के बारे में या फिर कृष्ण भक्ति के बारे में को कुछ भी पता नहीं था, तो ऐसे मेरे को लगता था सारी देवी देवताओं का अपना अपना पूजा करना पड़ेगा। और मेरे को ऐसे यही दिमाग में शुरू से बचपन से यही था कि गणेश जी हैं, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, मेरे को सबको खुश रखना है, और ऐसे करके मेरे दिमाग में था। फिर मैं जब भक्तों के संग में आया तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो जैसे रूट वाला एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ के जड़ों में पानी दो तो सर्वत्र उसके सारे भागों में पानी चला जाता है। तो वैसे ही मेरे को उसके बाद ये भी तसल्ली भी आया था। तो इस श्लोक में भी भगवान वो एश्योर कर रहे हैं कि हाँ, मतलब ऐसे। और एक और चीज जो भगवान एकदम अंत में भी बोलते हैं कि जो जप यज्ञ है, 10th चैप्टर के 25th श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसे सारे पर्वतों में हिमालय सर्वश्रेष्ठ है, वैसे सारे यज्ञों में जप यज्ञ बेस्ट है। तो मेरे को भी वैसे ही पता चला कि इतने सारे यज्ञ होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड है, महाप्रभु ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया, और ये जो नाम संकीर्तन यज्ञ है सबसे बेस्ट है। मतलब और यज्ञ करने की फिर हमको दरकार नहीं रहती। और एक और जो लास्ट में भगवान शायद मेन श्लोक है जो 18वें अध्याय का 66 वाला श्लोक, उसमें भगवान बोल रहे हैं सारे तुम्हारे जो भी अन्य ऋण है मैं क्षमा कर दूंगा। तो हमको फिर और भी कुछ करने का दरकार नहीं रहता जब हम ऐसे भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हैं। जय। ओके, थैंक यू सो मच। अभी किसी और का भी हैंड रेज हुआ था, शायद गलती से कर रहा था कि चिंतन प्रभु। ओके, सो डिस्कशन करेंगे, है ना। फिर और किसी को कुछ बोलना है? टिक टिक 1 2 3। नहीं, ठीक है। प्रभु जी, मुझे कुछ क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था। अभी तो कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो क्वेश्चन कहाँ से आ गया? क्वेश्चन एंड में पूछेगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वादहम अहम औषध मंत्रो अहम अहम एवाज्यहम अहम अग्निरहम हुतम। तो 8 बार यहाँ पे भगवान अहम 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 कहते हैं, है ना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इस प्रकार 8 बार अहम अहम अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए अपनी तरफ कहते हैं। तो पिछले श्लोकों में हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले तो 2 प्रकार के लोग जो भगवान की पहले तो 2 श्लोकों में बताया कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनके क्या सिम्टम्स है। फिर बताया जो 2 श्लोकों में कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके क्या सिम्टम्स है और वो महात्मा होते हैं। और अगर किसी को ऐसा महात्मा बनना है या भक्त बनना है तो उनके अंदर क्या सिम्टम्स होने चाहिए। फिर इससे पिछले श्लोक में बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महात्मा नहीं होते, तो वो भी अलग अलग प्रकार से कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो वो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करते हैं और एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, है ना। 3 प्रकार से भगवान को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। एकत्वेन मतलब जो निराकार ब्रह्म से मिलने की कोशिश करते हैं। फिर पृथक्त्वेन, है ना, कि परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं, है ना। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग अपने मन से कुछ भी रच करके कि ये भगवान है। और तीसरा बताया था कि विविध रूपों में, है ना, बहुधा विश्वतो मुखम, ये अलग अलग रूपों में करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है कि किस प्रकार से अलग अलग रूपों में करते हैं, है ना। थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि जो लोग हैं उन्हें समझ में आए। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि ये जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, है ना, इनका क्या होता है। क्योंकि पहले तो बता दिया कि महात्मा लोग कौन है, जो एकदम भक्ति में लगे हुए हैं। और क्या बताया था, है ना, भजन्त्या अनन्या मनसो, है ना। ये 3 चीजें भक्तों के अंदर होती है। और क्या, ज्ञात्वा आदिम अव्ययम, है ना, कि वो भगवान को जान करके कि वो आदि हैं और अव्यय है, वो अनन्य मन से सिर्फ भजन करते हैं और सेवा करते हैं, प्रेममयी भक्ति में सेवा करते हैं। और इसलिए हम लोग सुबह वो गुरु पूजा में दोहराते हैं ना, प्रेमा भक्ति जाहा है ते अविद्या विनाशा जाते
वेदे गायाः रचरिता, है ना। तो इसलिए सिर्फ दोहराएंगे, अगर उसको समझेंगे नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। इसलिए सुबह हम डेली जो गुरु पूजा रिसाइट करते हैं उसमें हम गाते हैं ये कि प्रेमा भक्ति जहाँ हिते अविद्या विनाश जते। अगर हम अविद्या से छूटना चाहते हैं तो प्रेमा भक्ति, है ना, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बताया है। तो वही चीज भगवान कहते हैं भजन्ते अनन्य मनसो, और फिर उससे अगले श्लोक में और डिटेल में बताया कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। तो ये तो हो गई महात्माओं की बात, लेकिन जो महात्मा नहीं है, जो अलग अलग तरीके से देवी देवताओं की उपासना करने में लगे हुए हैं, अलग अलग यज्ञ करने में लगे हुए हैं। अब कई लोग हैं जो जैसे कुछ देवी देवता तो ये हो गए फेमस देवी देवता, जैसे गणेश जी हैं, है ना, माता रानी है, वो माता रानी के भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग माता रानी है। ये तो फेमस देवी देवता है जो सब लोग करते हैं। लेकिन कुछ होते कुल देवी देवता, है ना, फिर कुछ होते हैं जो, अगर आप देवभूमि उत्तराखंड में जाओगे तो वहाँ तो नाम ही देवभूमि है, तो वहाँ तो देवताओं की भरमार लगी हुई है। आप एक मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ के देवता बदल जाते हैं, है ना। यहाँ अलग देवता, अगले डिस्ट्रिक्ट में अलग देवता, उसके अगले में अलग देवता। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर इन लोगों का क्या होगा, है ना, जो ये सब पूजा करने में लगे हुए हैं, आखिर ये किस प्रकार से कर रहे हैं। हालांकि भगवान 7वें अध्याय में बता चुके हैं कि ये भी त्रुटि पूर्वक मेरी ही सेवा करते हैं, इन्हें पता नहीं है, लेकिन ये भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं जाने अनजाने में, है ना। अब वो गलत तरीके से कर रहे हैं लेकिन कर मेरी ही रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा ये प्रश्न उठता है ना, कि जो अलग अलग, अब कई लोग होते हैं बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, कुछ पीपल के पेड़ की करते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का रखता है, कोई शनिवार का रखता है, कोई बुधवार का रखता है, कोई शुक्रवार का रखता है। तो इन सब का क्या होगा, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो मंडे से सैटरडे व्रत रखते हैं, संडे को अंडे खाते हैं, है ना। तो और फिर कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे और बाकी दिन करेंगे हम व्रत। तो ऐसे लोगों का क्या होता है। तो भगवान आज के श्लोक में तो उन लोगों की बात कर रहे हैं। अब ये 16 से लेके 19 तक भगवान यही सब बात करेंगे, लेकिन आज के श्लोक में भगवान यज्ञ करने वालों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि अहम क्रतु, है ना। अहम क्रतु, क्रतु का मतलब होता है कर्म कांड, या वेदों में जो ज्योतिषोम यज्ञ या अलग अलग वैदिक यज्ञ बताए हैं। और यहाँ पे क्रतु का मतलब ये भी है कि जो श्रुति शास्त्र में यज्ञ बताए गए हैं, है ना। तो दो चीज होती है श्रुति और स्मृति, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रुति शास्त्र नहीं जानता वो गुरु नहीं बन सकता, है ना। एक गुरु को श्रुति शास्त्र पता होने चाहिए। सो अब आप बोलेंगे कि उस दिन तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बाहर के लोग हैं वो कई बार कहते हैं कि श्रुति पढ़ो, है ना। और हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ भगवत गीता। यस, हम इसलिए इससे ऐसा कहते हैं क्योंकि हमें गुरु नहीं बनना, है ना, और ना हमारे बस की है कि हम लोग श्रुति शास्त्र पढ़ पढ़ के महारत हासिल करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन शिला प्रभुपाद एक गुरु की पोजीशन बताते हैं कि अगर कोई गुरु है तो उसको श्रुति शास्त्र पता होने चाहिए, वेद और उपनिषदों की वाणी पता होनी चाहिए, है ना। और इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी जगह जगह पे जैसे 3 लोगों को हराया, प्रकाश आनंद सरस्वती और बचपन में केशव काश्मीरी और क्या नाम था, सर्वभौम भट्टाचार्य, है ना। इन तीनों को हराया, तो इन तीनों को चैतन्य महाप्रभु श्रुति शास्त्र से कोट करके बताते हैं, क्योंकि महाप्रभु को पता है ये स्मृति शास्त्र से सुनने वाले हैं नहीं, है ना। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि श्रुति मतलब जो डायरेक्ट भगवान की वाणी है ना, यानी वेद और उपनिषद। और स्मृति शास्त्र मतलब उनको सुन करके, स्मरण रख करके, स्मृति मतलब स्मृति में रख करके, स्मरण रख करके जो लिखा गया है भागवतम इत्यादि, तो ये स्मृति शास्त्र है। तो कई बार स्मृति शास्त्र को स्वीकार नहीं करते, हालांकि नॉलेज एक ही है दोनों में, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद भी बताते हैं कि श्रुति शास्त्र पता होने चाहिए। तो श्रुति के अंदर यानी कि वेद और उपनिषद, है ना, खासकर कि वेद चतुर्वेद, है ना, जो अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, ये सब जो है, इनके अंदर जो जो यज्ञ बताए गए हैं वो मैं हूँ। क्योंकि पिछले श्लोक में यही बोला था कि ये लोग ये सब यज्ञ करने में लगे रहते हैं जो वेदों में बताए हैं, श्रुति शास्त्र में बताए हैं, तो वो सारे यज्ञ मैं हूँ, है ना। तो जो यज्ञ कर रहे हैं वो भी मैं हूँ। फिर अहम क्रतु, है ना, जितने भी यज्ञ बताए हैं वो मैं हूँ। फिर अम, मैं ही कर्म कांड, है ना। पहले तो क्रतु मतलब मैं ही कर्म कांड हूँ, है ना। वैदिक अनुष्ठान या कर्म कांड जो भी वेदों के अंदर बताए गए, और फिर कहते हैं कि यज्ञ, है ना, इन कर्म कांडों के अंदर जो यज्ञ बताए गए हैं वो मैं हूँ। और फिर उसके बाद कहते हैं कि अ, अहम स्वधा, है ना। स्वधा मतलब होता है कि जो पितरों को दान में दिया जाता है ना, तर्पण।
जैसे श्राद्ध अभी आ रहे हैं, है ना, ये सितंबर में होंगे, अगस्त सितंबर में। तो जब श्राद्ध होते हैं तो आप देखते होंगे, है ना, हम तो बच्चे तो शायद इतना खुद से नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो हमारे पूर्वज हैं, मतलब इस शरीर से जुड़े हुए जो पूर्वज हैं, उनको हमारे माता-पिता या इत्यादि लोग अलग-अलग कुछ पिंड बना करके वो कुछ-कुछ अलग-अलग खाने की चीज़ें होती हैं ना, ज्वार की रोटी जो भी है ना, तो उस कप का एक पिंड बना करके और इस प्रकार से जो पूर्वज होते हैं उनकी फ़ोटो के सामने ऑफ़र करते हैं। सो इसका एक्चुअली हमें ये सब पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हम ब्लाइंडली ये सब फ़ॉलो करेंगे, मान लो कि कोई फ़ॉरेन कंट्री से आया, है ना? और आपसे पूछे कि क्यों करते हैं श्राद्ध कर्म? तो आपको पता होना चाहिए एंड हाउ इट वर्क्स ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? अगर हम बोल दें कि बस करते हैं, है ना? ऐसे मज़े है ना? मज़े आते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना? वी शुड नो कि श्राद्ध क्यों करते हैं और उसको करने की सही फ़िलॉसफ़ी क्या है ना? तो श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, ताकि वो भी भगवान को प्राप्त कर सके, ताकि वो भी भगवान के पास पहुँच सके। इसलिए भगवान को, विष्णु को भोग ऑफ़र करके और वो ऑफ़र करने के बाद उन पितरों को यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, है ना? उनको दिया जाता है। पर अनफॉर्च्युनेटली क्या करें आजकल, ये शायद सुमित प्रभु को पता होगा, है ना? क्योंकि यजमानों के घर जाते हैं, है ना? तो 99% आजकल जो ब्राह्मण हैं, वो घरों में जाते हैं। अब लोगों को तो पता नहीं, उन्हें क्या पता भैया, वो तो इनोसेंट से हैं, है ना? अब उनकी भी गलती है, वैसे वो जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो ब्राह्मण है ना, जो सिर्फ़ खाने के लिए वहाँ पे और दक्षिणा के लिए पहुँच जाते हैं, वो जाते हैं और भगवान को ऑफ़र ही नहीं करते, लो भैया, है ना, काम ही तमाम, और सीधा वो पितरों की फ़ोटो रखेंगे और डायरेक्ट उनके सामने ऑफ़र कर दिया। क्या फ़ायदा ये सब करने का? वो क्या खाने के भूखे बैठे हैं वहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा अच्छा खाना नहीं मिलता, तो अगर आप हो सके तो पृथ्वी से थोड़ा अच्छा खाना सप्लाई कर दो, है ना? ये सब करने से क्या होगा, है ना? इसलिए जो मेन पर्पस है श्राद्ध कर्म का, वो ये है कि भगवान को ऑफर करके, वो जो पिंड बनाया था उसको कृष्णा को, विष्णु को ऑफर करके, है ना, भगवान के किसी भी तत्व को, है ना, राम जी, नरसिंह अवतार, विष्णु जी, कृष्णा, है ना, उनको ऑफर करके फिर वो पिंड उन पितरों को दिया जाए, तो उससे उनका उद्धार होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है ना, कि क्या था, स्वधा, है ना, कि ये जो तर्पण है, ये जो वेदों में, सॉरी, ये जो श्राद्ध में ये पिंड दिया जाता है, ये भगवान को ऑफर करके उन्हें दिया जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ना आपका भला होगा ना पितरों का भला होगा। आप बस टाइम पास कर रहे हो, है ना, आप बस अपने मन के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो कि हाँ हो गया, है ना, मजे आ गए। तो बस कुछ करना था, एक रीति रिवाज था, तो हो गया, है ना। और ये श्राद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो भक्त है, खैर अगर वो ना भी करे, जो स्वरूप सिद्ध भक्त होते हैं, अगर वो ना भी करे तो चलेगा, है ना। भगवत गीता में भगवान ने बताया कि जो स्वरूप सिद्ध भक्त है उनके सभी ऋण ऑटोमेटिकली चुक जाते हैं। लेकिन स्टिल हम सामाजिक दृष्टि से सबको सिखाने के लिए कई बार करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबके लिए, है ना, श्राद्ध कर्म करना। ऐसा बताया गया कि जो ऐसा पिंडदान नहीं करते, जैसे जब कोई मर जाता है उसके 13 दिन में जो प्रोसेस करते हैं, एक तो वो और श्राद्ध कर्म, अगर ये सही प्रकार से ना किया जाए तो आत्मा भटकती रहती है, जो मृत्यु हुई है जिसकी, है ना। इसलिए इट्स वेरी, और आज के समय पे तो कोई करता ही नहीं, है ना, कई सारी अनजान बॉडीज होती है, फिर उनको ऐसे ही जला देते हैं, है ना, तो उनका पिंडदान कौन करेगा। तो इसलिए ये पिंडदान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आत्मा भटकती रहती है, बहुत सहना पड़ता है ना। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो, तो भगवान को ऑफर करके और फिर वो उनको जो पितृ हैं उनको दिया जाता है, नहीं तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। तो इसलिए टाइम पास हो जाएगा, इसलिए अगर कुछ देना है तो वो कृष्णा को, निताई, सॉरी, हाँ, निताई को, विष्णु को, है ना, इन सबको ऑफर्ड होना चाहिए और फिर उनको देना चाहिए। तो जो घर में ब्राह्मण आते हैं उनको भी समझाना चाहिए कि भैया, भगवान बोलते हैं, है ना, कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा। अब एक बात बताओ, जो पूर्वज है ना, अभी से हार्दिक प्रभु ने, मैंने पूरा तो पढ़ा नहीं, बट उन्होंने कुछ लिखा था चैट बॉक्स में कि वो मीट ईटिंग वगैरह अगर करते थे, है ना, तो पहली बात, अगर वो बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे तो भी वो भगवान तो नहीं है, उनकी सेंसेस कोई स्पिरिचुअल नहीं है ना, कि वो आ करके और फोटो के अंदर से, है ना, आपके जो आपने जो भोग लगाया है वो उसको खा लेंगे और फिर आप उनका झूठन खा रहे हो, है ना, तो ये तो और खतरनाक है ना, क्योंकि वो जो प्रसाद बाद में बच जाता है उसको मिला के लोग खा भी रहे होते हैं। सो दिस इज, है ना, समथिंग कि इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड कि, है ना, शास्त्र वाणी क्या है, नहीं तो बस ऐसी बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं
कि सबसे पहले क्रतु है ना, जो कर्म कांड वैदिक अनुष्ठान है वो मैं हूँ। फिर जो यज्ञ किया जाता है स्वाहा स्वाहा है ना, वो मैं हूँ, है ना। और उसके बाद पितरों को जो तर्पण दिया जाता है ना, यानी कि जो ये सब दिया जाता है वो भी मैं हूँ। फिर कहते हैं अहम औषधम। अब हर चीज में भगवान अहम अहम कह रहे हैं कि सारी चीज मैं हूँ, है ना। तो फिर कहते हैं कि अहम औषधम, यानी औषधि मतलब जो अलग अलग मटेरियल यूज होता है ना यज्ञ करने के लिए, जैसे जौ है ना, और हवन सामग्री जैसे बोलते हैं, तो उसमें जो दो चीजें मिलाते हैं, मुझे डिटेल में नहीं पता क्या क्या मिलाते हैं, पर वो ब्लैक पाउडर जो होता है हवन सामग्री है ना, आप सबने देखा होगा। तो वो जो यज्ञ करने के लिए वो यूज होता है उसको औषधम कहते हैं, कि वो औषधि, तो भगवान कहते हैं वो औषधम भी मैं हूँ, है ना, वो औषधि भी मैं हूँ। ये जो हवन सामग्री यूज होती है दैट इज ऑल्सो मी, दैट इज ऑल्सो कृष्णा। तो और इसमें घी भी है ना, घी का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आजकल क्या करें कि वो जो घी तो खैर भगवान आगे बताएंगे, है ना। अभी तो भगवान औषधम की बात कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग चीज़ है ये सब मैं हूँ। लेकिन आजकल हर चीज़ में मिलावट है, चाहे वो घी हो, चाहे वो औषधम हवन सामग्री हो, कुछ भी हो। तो इसलिए ऐसे यज्ञ सक्सेसफुल होंगे कि नहीं वो तो भगवान जाने। लेकिन भगवान जरूर कहते हैं कि ये औषधम, ये औषधिया भी मैं हूँ। तो जो यज्ञ करते हैं उनका वैदिक अनुष्ठान भी, यज्ञ भी, और पितरों को दिया जाने वाला तर्पण और औषधि, ये सब भगवान है। लेकिन जो करते हैं उन्हें पता नहीं, है ना। जैसे कुछ लोग हैं वो अपने आप को आर्य कहते हैं कि हम पूरे दिन यज्ञ करते हैं। कई बार हमारे पास भी आते हैं और कहते हैं आप इस्कॉन वाले हर टाइम हरे कृष्णा करते रहते हो, आप कुछ यज्ञ वगैरह नहीं करते। और उनका काम है कि वो सिर्फ यज्ञ करते रहते हैं, है ना। जबकि भगवान ही सब बता रहे कि ये सब जो यज्ञ की जो सामग्री है, जो कुछ भी है, अग्नि है, वो सब मैं हूँ, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि आप बस हरे कृष्णा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो बस मैं कहकर छोड़ रहा हूँ, सस्पेंस, है ना। सो अब कहते हैं कि मंत्रो अहम, है ना। इसके बाद कौन कितने हो गए, अहम क्रतु, फिर यज्ञ, और तर्पण औषधि। अब कहते हैं कि अहम मंत्र, है ना। तो जितने भी मंत्र है वो मैं हूँ। तो जितने भी मंत्र है अगर उसमें भगवान का नाम ना है तो वो किसी काम का नहीं है ना। तो इसलिए मंत्र जो है वो उसमें भगवान का नाम होना चाहिए, नहीं तो भगवान के प्लेजर के लिए होना चाहिए। इसलिए महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो जो बाहर के जो लोग हैं वो यज्ञ में अलग अलग मंत्र उच्चारण करते हैं इंद्र देव के लिए, और फलाने फलाने देवताओं के लिए, पितरों के लिए, इधर उधर के लोगों के लिए। हम इस्कॉन में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से लेकर नमो ओम विष्णु पदाय तक इसी में यज्ञ कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो यही हमारे वैदिक मंत्र हैं। एक बार एक थोड़ा कुछ एक फनी इंसिडेंट एक प्रभु जी बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि एक बार कुछ एक गैदरिंग हो रही थी, तो उसमें कुछ नए लोग आए हुए थे, है ना, सेंटर, इस्कॉन के सेंटर पे। तो वहाँ पे बोला कि हमारे एक डिवोटी हैं, वो बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं, है ना। अभी वो आपके सामने आकर के बहुत अच्छे मंत्र गाएंगे। अब बाहर के लोगों को पता नहीं कि क्या गाएंगे। तो उन्होंने संस्कृत टोन में आकर के बोला, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। तो सब लोग ताली मारने लगे, वाह वाह वाह, है ना। क्या सुंदर संस्कृत मंत्र उच्चारण किया, आज तक ऐसे मंत्र तो कभी सुने ही नहीं। तो इस्कॉन में तो ये सभी गाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे लिए यही मंत्र है ना। लेकिन बाहर के लोग अलग अलग मंत्र गाते हैं। तो कहने की बात ये है कि ये यज्ञ की सामग्री हो, यज्ञ हो, मंत्र हो, ये जो कुछ भी है ये विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, है ना, 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो यज्ञ है वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अब अगर यही ना पता हो कि यज्ञ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो फिर क्या फायदा, है ना। बस करने में लगे हुए हैं। और आजकल पंडितों के तो बिजनेस ही इसी प्रकार से चल रहे हैं। देखिए मेरे पास, है ना, 5,000 से लेके और 75,000 रुपए तक का पैकेज है। 5,000 से नीचे तो देखे नहीं है ना। आप चाहे तो ईएमआई करा सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा। लेकिन 5,000 से नीचे नहीं हो पाएगा। और उसके अंदर हवन सामग्री, घी वगैरह वो सब आपको खुद करना है, टेंट वगैरह खुद लगवाना है। 5,000 तो मेरा है ना। उसके बाद जो क्या बोलते हैं प्रसाद होगा, उसमें 5 तरीके के रायते, और 4 तरीके की पनीर की सब्जी, और 10 तरीके की पूरी, है ना। ये सब आपको रखनी पड़ेगी, है ना। तो
कुछ हम्बल भी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो उनका है ना पैकेज होता है कि देखो आपको सामने पूरा मेनू दे दिया मैंने 5,000 से लेके 75,000 तक। आप बता दीजिए आपको कौन सा वाला यज्ञ कराना है। इस वाले से आप स्वर्ग चले जाओगे, इस वाले से आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे, इस वाले से आपके घर के अंदर जो थोड़ी कई बार इंग्लिश भी बोल देते हैं, आपके घर में जो नेगेटिविटी है ना तो वो सारी दूर हो जाएगी, है ना। तो आप ये अलग 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 यज्ञ करा लीजिए। पर यज्ञ का अगर यही नहीं पता हो कैसे होता है, क्यों होता है ना, और किसकी प्रसन्नता के लिए होता है, तो फिर क्या फायदा, है ना। इसलिए यज्ञ श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है ना। तो यस जरूर है ना, यज्ञ मतलब कर सकते हैं और होने भी चाहिए, है ना। जो कर रहे हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन यज्ञ क्यों हो रहा है और किस तरीके से करना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आग जलाई और कुछ डाल के स्वाहा कर दिया है ना, ऐसे नहीं होता। एंड ये जो यज्ञ है वो काफ़ी पवित्र भी होता है ना, इवन एटमॉस्फेयर के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी। लेकिन इस सब का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है भगवान की प्रसन्नता, है ना कि ये सब नेगेटिविटी मिटाना, ये करना वो करना। भगवान प्रसन्न है तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। भगवान प्रसन्न नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, नेगेटिविटी ऐसे नहीं जा सकती, है ना। आप सोचो कि पूरे दिन आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करोगे, पूरे दिन आप उल्टी सीधी बातें करोगे, पूरे दिन फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओगे, है ना, इधर गंदी संगति करोगे, गंदे लोगों के संग में रहोगे, गंदा खाना खाओगे और सोचोगे ऐसे नेगेटिविटी चली जाएगी यज्ञ करने से, है ना। तो ये सिर्फ पैसों की बेवकूफ़ी बर्बादी है ये सब, ऐसे नहीं होता, है ना। सारी दिक्कत यहाँ पे है ना। अगर मन कृष्णमयी है, अगर मन और चिंतन कृष्ण में लगा हुआ है ना, तो अपने आप ऑलरेडी सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। और मंत्र का यही मतलब है ना, कि जो मन को तार दे, है ना, मंत्र इति त्रायते, है ना। जो मन को तार देता है उसी को मंत्र कहते हैं। और मन को तारने के लिए सबसे बेस्ट है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो इसलिए जो ये दिव्य ध्वनि मंत्र है ना, जो इसका उच्चारण करते हैं, या ओम, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ये सब जितने भी मंत्र है तो ये भी भगवान है ना। तो और इसमें भगवान के नाम होते हैं, तो ऑलरेडी वो ऑब्वियसली वो भगवान है, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। फिर कहते हैं कि अ, कहाँ तक हो गया मंत्र, फिर मंत्रो अहम, फिर कहते हैं अहम एवं निश्चय ही मैं आज्यम, है ना, यानी घृत। अब मैं घी हूँ, है ना। तो यज्ञ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री है घी, है ना। तो वो जो घी है वो भी मैं हूँ। पर आजकल तो क्या करें, है ना, जैसे मैं भी कह रहा था कि लोगों के पास प्योर घी तो है नहीं। महाराज जी बता रहे थे एक बार वो महाराष्ट्र में कहीं गए थे, तो वहाँ पे कुछ एक यज्ञ हो रहा था। तो वहाँ पे महाराज जी, है ना, इस्कॉन के डिवोटीज तो शेव्ड हेड और कंठी और तिलक लगा के रखते हैं। लोग हमें जो शेव्ड हेड नहीं है कई बार हमें ही पंडित जी बोल देते हैं, है ना। सो मैं कहीं ये थोड़ी मोटी कंठी आ गई गलती से, है ना, तो कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आप पूजा पाठ करते हो, है ना। तो मुझे समझाना पड़ता है कि देखिए आप जो पूजा पाठ कह रहे हैं और मैं जो कर रहा हूँ उसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। बट ठीक है। तो महाराज जी एक जगह महाराष्ट्र में गए थे, तो वहाँ पे देखा कि कोई सन्यासी आए हैं, तो उन्हें भी बिठा दिया, है ना। तो वहाँ पे अलग अलग इंद्र का मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र करे जा रहे। तो क्या हुआ कि थोड़ी अग्नि कम होने लग गई, है ना, जो हवन कुंड होता है उसमें। तो जो एक दूसरा पंडित था, है ना, एक पुरोहित था, तो उसने क्या करा कि घी लिया पैकेट वाला, है ना, कोई पैकेट वाला घी था, उसको भिगोने में पलट के वो घी लिया और वो अग्नि में डाला, और अग्नि जलने की जगह बुझ गई, है ना। तो महाराज जी कह रहे ऐसा कभी होता है ना, कि प्योर घी से कभी अग्नि बुझ जाए, है ना। लो हो गया यज्ञ का सत्यानाश, है ना। जो यज्ञ हवन करने के लिए आए थे वो एडल्ट्रेटेड घी डाल के हो गया। और आज के समय में कहाँ प्योर घी मिलेगा, है ना, जब गाय ही हाइब्रिड वाली है ना, और गायों पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो उसमें कहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें प्योर घी मिलेगा। तो कलयुग में यज्ञ पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना। यज्ञ में कलयुग में प्योर यज्ञ तो हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि अगर घी अच्छा मिल भी गया तो पंडित का, है ना, बेड़ा गर्क है। और पंडित अगर अच्छा मिल गया तो हवन सामग्री का बेड़ा गर्क है। अगर ये सब अच्छा मिल गया तो जो ऑडियंस आई है उसका बेड़ा गर्क है ना। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे कभी कभार, है ना, यज्ञ वगैरह में अलग अलग जगहों पे जाना होता है, तो कुछ जो थोड़े अमीर या थोड़े अच्छे कुल में जन्मे हुए लोग होते हैं, है ना, जो अपने आप को मानते हैं कि हम थोड़े उच्च कुल में या थोड़े हम अमीर लोग हैं, तो हमें, तो वो यज्ञ करने सबसे आगे चले जाते हैं। लो भैया अब एक और बेड़ा गर्क, है ना। जो व्यक्ति सारे के सारे उल्टे सीधे काम कर रहा था, उसने सोचा मैं बड़े कुल में जन्म हुआ है मेरा, या मैं थोड़ा अमीर हूँ,
मैं थोड़ा अच्छे पद पर हूँ, मिनिस्टर की पोजीशन पर हूँ, तो मैं यज्ञ करूंगा। अब उसने जैसी अग्नि में हाथ लगाया, लो बेड़ा गर्क, है ना। तो जैसे होता है ना, पंडित लोग कई बार बोलते हैं कि आप भी हेल्प करिए, है ना, आप भी स्वाहा स्वाहा करिए। तो मतलब अब कुछ लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि वो तो अच्छा है ना कि वो बुरा व्यक्ति भी थोड़ा ही सब कर रहा है, बट यज्ञ के लिए प्योरिटी चाहिए, है ना। जब तक वो पवित्रता, प्योरिटी इज द फोर्स, है ना, जब तक पवित्रता नहीं है तब तो बेड़ा गर्क ही होगा। इसलिए अगर यजमा सॉरी अगर पंडित अच्छे हैं तो जिसके घर में यज्ञ हो रहा है, जहाँ यज्ञ हो रहा है, वो ऑडियंस अच्छी नहीं है, ऑडियंस अच्छी है तो पंडित अच्छा नहीं है, पंडित ये दोनों अच्छे हैं तो घी अच्छा नहीं है, सामग्री अच्छा नहीं है, और समय, ये सब ध्यान रखना पड़ता है, समय का, मुहूर्त का, है ना। और हवन कहाँ हो रहा है, वो सब पवित्रता से होना चाहिए, सामग्री पवित्र होनी चाहिए, अडल्ट्रेटेड नहीं। ये नहीं कि आप डालडा का घी लाके उससे यज्ञ कर रहे हो, है ना। तो ये सब नहीं होता। और प्रॉपर ड्रेस पहननी चाहिए, है ना। जो पंडित वहां पे आके कर रहे हैं वो सेलिबेसी मेंटेन करते होने चाहिए। ये नहीं कि, है ना, नहाए भी नहीं है, पवित्र भी नहीं है, और जैसे मर्जी आकर के कर रहे हैं, है ना। तो आजकल तो वही सब हो रखा है। तो इसलिए हम कलयुग में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यज्ञ करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, यज्ञ करने से कोई हमारे अंदर सारी अल्टीमेट गोल जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर कहते हैं कि मैं अग्नि हूँ, है ना। तो अब यज्ञ में बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि, अग्नि नहीं होगी तो यज्ञ कहाँ से होगा, है ना। तो इसलिए वो जो आग है वो भी भगवान है। और ये जो यज्ञ में हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, घी ये सब, ये देवता, महाराज जी ऐसा कह रहे थे कि पता नहीं क्या कह रहे थे महाराज, की देवताओं का मुख नहीं है, तो देवता ये आग के थ्रू, जो जितनी भी औषधियां हैं और घृत वगैरह, ये सब आग के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं देवी देवता, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अग्नि है वो भी भगवान है ना। तो उसके बाद आहुति, है ना। आहुति मतलब जो भेंट, है ना, जो आहुति दी जाती है यज्ञ के लिए, है ना। जैसे कोई दान दक्षिणा देते हैं, कुछ देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो ये सब भी जो है वो भी हाँ, है ना, अग्नि भगवान का मुख से निकलती है। तो इसलिए महाराज जी ये भी कह रहे थे, अच्छा याद दिलाया, कि महाराज जी ये भी कह रहे थे जब वो एक क्या नाम था उस अग्नि फेंकने वाले असुर का, है ना, जिसने पूरे जंगल में आग लगा दी थी, तो भगवान वहां पे जाके अपना मुख खोल के सारी आग अपने मुख से पी गए थे, है ना। तो कृष्णा वाज लाइक कि क्या तुम, है ना, यहाँ जंगल में आग लगा रहे हो, मेरे मुख से तो आग निकलती है ना। तो भगवान सारी वापस पी गए। तो इस प्रकार अग्नि भी भगवान है, और आहुति, है ना, जो यज्ञ के लिए अलग अलग दान दक्षिणा या भेंट इत्यादि गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, वो भी भगवान है। इसीलिए कुल मिलाकर के यज्ञ के अंदर जो 8 चीजें इंपॉर्टेंट है, मेन है ना, प्रोमिनेंट है, वो सारी की सारी कृष्ण है। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो लोग महात्मा नहीं है, जो लोग इन यज्ञ के थ्रू भगवान के पास जाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उन्हें भी समझना, उन्हें शायद पता हो या ना पता हो, वो जैसे मर्जी कर रहे हो, लेकिन वो सारी भगवान के आइटम्स यूज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली भगवान को ही कर रहे हैं, कि भगवान कह रहे हैं अहम क्रतु अहम यज्ञ अहम घृत, है ना। तो ये सब भगवान है, तो वो डायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्टली वो कर जो रहे हैं वो कृष्णा के साथ ही इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए श्रील प्रभुपाद लास्ट में कह रहे हैं कि अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी सारे यज्ञ कंप्लीट कर लिए हैं। और श्रीमद् भागवतम के अंदर तीसरे स्कंद में माता देवहूति बताती हैं कि अगर कोई चंडाल हो, कुत्ते का मांस खाने वाला, अगर वो पार्शली भी भगवान का नाम ले ले, पूरा नहीं, है ना, आधा भी भगवान का नाम पार्शली भी ले ले, एक आधा नाम भी ले ले, तो वो याज्ञिक ब्राह्मण बन जाता है ना। उसके अंदर याज्ञिक ब्राह्मण की क्वालिटीज आ जाती है कि एक जो चंडाल जो था, कुत्ते का मांस खाने वाला, वो इतना पवित्र हो जाता है भगवान का आधा नाम लेने से कि वो यज्ञ कर सकता है, जाके याज्ञिक ब्राह्मण बन जाता है। अब कुछ होंगे, है ना, आर्य लोग या छायावादी लोग, है ना, जो कि बोलेंगे कि आओ ना फिर बैठो, हम क्या पागल है, हम लोग ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ है, हमने जनेऊ धारण कर रखा है ना, हम जन्मजात ब्राह्मण है ना, त्रिवेदी ब्राह्मण है, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, शर्मा है, ये है वो है ना। आपकी हिम्मत है तो आके करो ना यहाँ पे यज्ञ। तो वो नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऐसा नीच काम नहीं करेंगे, है ना। अरे भैया, जिसने पीएचडी कर ली है वो क्यों फालतू में एबीसीडी पढ़ेगा, जब वो ऑलरेडी पीएचडी कर चुका है। तो व्हाई विल डू एबीसीडी? ये तो आपका काम है ना, कि हम तो याज्ञिक ब्राह्मण है, हम तो यज्ञ करेंगे, ये करेंगे। तो भगवान यही तो कह रहे हैं, है ना, कि पहले बोला महात्मा,
उसके बाद कौन महात्मा नहीं है, है ना? इनडायरेक्टली ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो माम उपासते। और फिर उसके बाद जो इस प्रकार से यज्ञ करने में लगे रहते हो, उन सबका जो सामग्री है वो भी मैं हूँ, है ना? तो बहुत अच्छा है, आप यज्ञ कीजिए, है ना? दैट इज़ वेरी गुड। बट जो भगवान का नाम ले रहे हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो इसलिए अब हम जो नरसिंह यज्ञ इत्यादि इत्यादि यज्ञ करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यज्ञ करना नहीं चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड, है ना? वी शुड डू यज्ञ। और भैया ये सनातन धर्म का पार्ट है ना, हमारे श्रुति शास्त्रों में वेदों में बताया गया है। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए आपको, है ना? डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड डोंट बी, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ और का कुछ और मतलब निकाल लें आप लोग, है ना? तो यज्ञ करना बहुत अच्छा है और यज्ञ होने भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सिर्फ यज्ञ करते हैं और उन्हें नहीं पता कि वो कृष्ण विष्णु की प्रसन्नता के लिए, तो उन्हें ये जानना चाहिए। और जो यज्ञ नहीं कर रहा, सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं है ये सब इधर उधर के यज्ञ करने की जबरदस्ती, है ना? स्वाहा स्वाहा करे, अग्नि जलाए, ये करे वो करे, कि आज के टाइम में कुछ प्योर नहीं रह गया है, तो करेगा भी तो भी कोई फायदा है कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए अम, इसलिए ज़रूरी है ना कि हम भगवान का नाम लें, है ना? जैसे अभी नारायण प्रभु भी हमें याद दिला रहे थे कि भगवान 10वें अध्याय में भी आगे कहेंगे कि अहम जप यज्ञोस्मि, है ना? कि सभी यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो मैं हूँ। तो इसलिए जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करके डेली जप करते हैं, ये भी भगवान है ना? ये भी कृष्ण है। तो वो सबसे बेस्ट है एंड दैट इज़ अल्टीमेट। और इसलिए भागवतम में भी अलग अलग जगह पे बताया गया है तस्मात् संकीर्तनम, है ना? और जो श्रीमद् भागवतम का आखिरी वर्ष है ना? आखिरी कैंटो का जो आखिरी वर्ष है, उसमें भी भगवान हरिनाम के बारे में बता रहे हैं। तो शुरू का भागवतम का पहला वर्ष जन्मादस्य यतो अन्वया वितरतश्च अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, है ना? वहां से लेकर के और जो भागवतम का आखिरी वर्ष है उसमें भगवान संकीर्तन के बारे में बताते हैं। तो ये आखिरी वर्ष और पहला वर्ष एक एक तरीके से क्रक्स है ना, कि इसके बीच में जो कुछ भी था उसका क्रक्स बता दिया। तो श्रीमद् भागवतम के एंड में भगवान, क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कह करके खत्म करते हैं, मतलब लास्ट में तो संजय कहते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कोई भी हमसे पूछता है कि भगवत गीता का क्रक्स क्या है ना? या एक एक श्लोक में बताओ कि भगवत गीता क्या है, तो हम यही वाला श्लोक उद्धृत करते हैं, है ना? कि सर्वधर्मान परित्यज्य। क्यों? क्योंकि भगवान ने एकदम एंड में बताया कि दिस इज द कंक्लूजन, है ना? कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो इसी प्रकार भागवतम में कंक्लूजन बताया गया है कि दिस इज लास्ट, कि हरिनाम करने से, हरिनाम संकीर्तन करने से, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करने से बाकी सब हो जाता है ना? जो ये करने लग गया उसका यज्ञ करना, दान देना, फलाना करना, तप करना, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि इस सब का पर्पस क्या है? भगवान की प्रसन्नता, है ना? यज्ञ का मतलब है भगवान की प्रसन्नता, तपस्या का मतलब है भगवान की प्रसन्नता। तो जो सही मायने में भक्ति करता है, हरिनाम करता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब जो एक निष्ठ भक्त है, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो जब वो एक निष्ठ होकर के भक्ति करेगा, तपस्या ऑटोमेटिकली हो जाती है ना? लेकिन जो सही से भक्ति कर रहे हैं, है ना, ऑटोमेटिकली तपस्या उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि एकादशी का व्रत कर रहा है सही से, है ना? सिर्फ खाने के लिए नहीं, जन्माष्टमी का व्रत कर रहा है, अलग अलग व्रत कर रहा है ना? कभी कुछ प्रसाद नहीं मिला तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऑटोमेटिकली उसके तप हो जा रहे हैं, है ना? और एक जगह श्रील राधा गोविंद महाराज का मैं कोट पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, तो अभी क्योंकि समय है तो कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम कर लेंगे। तो उसमें राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि जो भक्त लोग होते हैं वो कभी कभार एक टाइम का या 2 टाइम का ही भोजन लेते हैं, है ना? और हम देखते हैं कि वो 3 टाइम के भोजन खाने वालों से भी ज़्यादा कई बार सेवा कर रहे होते हैं मंदिर में, या उनके बराबर कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है ना? तपस्या का जीवन है, तो हमें थोड़ी बहुत तपस्या जो है वो लेनी चाहिए, है ना? ये हमारे बड़ी काम आती है। और ये वैराग्य, एक बार हम शिला गोपेंद्र महाराज के साथ जा रहे थे, तो महाराज कह रहे थे आजकल के बच्चे तपस्या नहीं कर सकते, बिल्कुल आजकल के बच्चों में वैराग्य नहीं है ना? तो इसलिए श्रील राधा गोविंद महाराज ऐसा कह रहे थे, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट उससे ही समझ में आता है कि थोड़ी बहुत तपस्या हमें वॉलंटरीली करनी चाहिए, है ना? यानी जबरदस्ती करनी चाहिए, तो हमारे लिए अच्छा रहता है ना? क्योंकि और वो भगवत प्रसन्नता के लिए, ये सोच करके कि मैं अपनी सेंसेस को थोड़ा ज़्यादा भजन में लगाऊंगा, भोजन से हटा करके, ताकि मेरा कुछ भला हो सके, है ना? तो अभी जैसे चतुर्मास भी चल रहा है, तो अभी जो 4 चीज़ है उससे तो व्रत रखा ही है, लेकिन और अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं। ऐसा आयुर्वेद में भी वैसे बताया है कि
जो एक टाइम खाता है वो है योगी, जो 2 टाइम खाता है वो है भोगी, और जो 3 टाइम खाता है वो है रोगी, है ना? एक टाइम खाने, फिर बता रहा हूँ, 1 टाइम खाने वाला योगी, 2 टाइम खाने वाला भोगी और 3 टाइम खाने वाला रोगी। तो ऐसा आयुर्वेद के अंदर भी बताया गया है ना? सो क्योंकि हम ये कई बार डिस्कस कर नहीं पाते क्योंकि ऑनलाइन ग्रुप है ना? तो कभी-कभार ये छूट जाती हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मुझे याद आ रही थी, तो वो भी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। और यज्ञ में जैसे अभी हम क्लीनलीनेस की बात कर रहे थे, तो भक्ति जीवन में भी पवित्रता, क्लीनलीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, अंदर से भी और बाहर से भी, है ना? तो अंदर से तो हमें पता है, हम रोज ही डिस्कस करते हैं कि साधना करें और चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जनम करें, लेकिन बाहर से भी पवित्रता बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता, इसलिए जस्ट आई एम टेलिंग फॉर दैट सेक, है ना? कि जितनी बार भी अगर हम दिन में स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, उतनी बार हमें स्नान करना होता है ना? और अब ये फॉर्मूला चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, सब में लागू होता है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मियों में, लेकिन हाँ, है ना, कम से कम अभी गर्मी है तो नहीं कर रहे तो वी शुड ट्राई, क्योंकि अगर हम स्टूल पास करने के बाद इधर-उधर कहीं बैठेंगे, छुएँगे तो सब कंटामिनेट हो जाता है। इसलिए जितनी बार भी वॉशरूम यूज़ करें फॉर, है ना, 2 नंबर, है ना, स्टूल पास करने के लिए, उतनी बार स्नान करना चाहिए। और क्लीनलीनेस और जो विग्रह सेवा करते हैं ना, ये सब देखिए आइडल है ना? हमसे जितना हो सके उतना हमें पर डे प्रयास करना चाहिए कि हम इम्प्रूव करें। और जो विग्रह सेवा करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विग्रहों की सेवा से पहले आचमन करना आवश्यक है ना? और हम कोई भी भोग लगा रहे हैं, भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, पर्दा खोल रहे हैं, तो कुछ भी टच करने से पहले आचमन करना, अपने आप को पवित्र करना। और अगर सोकर उठे हैं, जैसे मान लीजिए सुबह आए हैं, तो वो तो है ही, लेकिन दिन में अगर आप सो करके उठे हैं, जैसे कई बार सो जाते हैं आधे 1 घंटे के लिए, वैसे तो एक डिवोटी बता रहे थे कि अगर हम दिन में 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो भी स्नान करना चाहिए, है ना? डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते, और वैसे भी स्नान करना चाहिए अगर 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा दिन में सो गए, है ना? तो और जब भगवान के पास दिन के समय जाते हैं, है ना, अगर सोकर उठ कर के गए हैं, तो आचमन में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, जैसे ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, तो हमें पता है। तो वो सुबह करने की नीड नहीं है जब नहाकर आए हैं, लेकिन दिन में से सो करके उठे तो हम अपवित्र हो जाते हैं। तो डायरेक्ट हम भगवान के पास नहीं जा सकते। तो ये केशवाय माधवाय नमः करने से पहले, है ना, एक पानी लेकर के एक मंत्र होता है, ओम पवित्रो पवित्रो वा, है ना, पूरा आप गूगल से निकाल सकते हैं। तो उसको कह करके 3 बार ऐसे छिड़कते हैं, है ना? तो ये क्लीनलीनेस मेंटेन करना बहुत 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 ज़रूरी है ना? विग्रह सेवा कर रहे हैं तो कंपलसरी है, नहीं कर रहे तो भी इम्पोर्टेंट है ना? कि जितनी बार भी वॉशरूम जाए उतनी बार नहाएँ, है ना? और हाथ पैर मुँह धोए, है ना? एक एक मैं सुन रहा था कि प्रसाद खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, वॉशरूम से आने के बाद कुल्ला करना चाहिए, है ना? तो ये सब भी, है ना, वैदिक नियम है। तो भक्ति जीवन में होते हुए हमें क्लीनलीनेस का भी मेंटेन करना चाहिए, और सेलिबेसी, ये भी पवित्रता के अंदर आता है ना? क्योंकि अगर सेलिबेसी मेंटेन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो फिर तो सारी पवित्रता गई, है ना? तो ये तो पवित्रता की एकदम मेन निशानी है ना? हाँ, तो ये कृष्णा प्रभु ने देखो शेयर कर दिया, है ना? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरते पुंडरीकाक्षं स भ्राय भयंतरः शुचिः, है ना? तो ये मंत्र है। तो जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए, है ना? ओके, सो इस श्लोक से फिर हमें यही कंक्लूजन है हमारे लिए, है ना, कि जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसी में उसके सारे यज्ञ इत्यादि इत्यादि फलाना ढिमकाना सब पूरा हो जाता है ना? सो तो ये भगवान ने बताया उन लोगों के लिए जो अन्य अन्य प्रकार से बहुधा विश्वतो मुखम, है ना, जो अलग अलग तरीके से भगवान को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उनकी क्या गति होती है, तो भगवान ये बता रहे हैं, है ना? अब अगले श्लोक में और बहुत प्यारा श्लोक है जिसमें और बताएंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बोल सकते हैं, आज की क्लास हम यही ओवर करें। यस नारायण प्रभु। प्रभु जी कितने कोडले करने चाहिए शॉर्ट्स जाने के बाद और प्रसाद पाने के बाद? प्रभु जी, मैंने जो नंबर सुना था वो तो एक्चुअली किन्हीं और संप्रदाय के कोई महाराज जी थे, श्री संप्रदाय के कोई बता रहे थे, लेकिन एटलीस्ट 2-3 बार तो करना चाहिए, है ना? ओके प्रभु।
यस, कृष्णा प्रभु। श्री कृष्णा गोविंद तो सुना था। क्योंकि हाँ, ये तो यज्ञ रहे भगवान के लिए, ऊपर से देवी देवताओं को घर के पास मंदिर है, वो तो रात देवी माता का, अब उसमें उनकी होती है, तो फिर वहां पर इनडायरेक्टली कृष्णा है ना, उनका ये यज्ञ है वो इनडायरेक्टली देखिए, कृष्णा के ऐसा लिए नहीं भी है कि वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और उससे उनको गोलोक प्राप्ति हो जाएगी, है ना? मैं ये भगवान का कहने का मतलब नहीं है ना? जैसे इसको एक भौतिक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अम, अभी मुझे और कुछ आ नहीं रहा, तो इससे समझने की कोशिश कीजिए, मे बी, है ना? थोड़ा क्रीप एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से ज़िद कर रहे हो कि मम्मी मुझे बाहर की पनीर की सब्ज़ी खानी है ना, तो 5 स्टार होटल से पनीर की सब्ज़ी मँगा लो, है ना? तो अब वो मम्मी खुद ही बनाए, है ना, और आपको दे दे और बोले कि हाँ 5 स्टार की, और आप मज़े से खा लो और आप बोलो कि अरे वाह बड़ी टेस्टी बनाई है रेस्टोरेंट वालों ने, और फिर मम्मी बोले कि एक्चुअली मैंने ही बनाई थी, है ना? तो यहाँ पे ये कहने का मतलब भगवान का कि हम लोग ये समझें कि जो लोग यज्ञ कर रहे हैं इस प्रकार से वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, क्योंकि सारी औषधि जो कुछ भी है वो भगवान है, तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो ये समझना चाहिए वो, हाँ, जो यज्ञ सामग्री है वो सब भगवान है, पर ये सब करने से वो कोई अल्टीमेट प्राप्ति थोड़ी ना हो जाएगी। तो भगवान ही समझाने के लिए ये श्लोक बता रहे हैं कि ये सब मैं ही हूँ, तो बेवकूफ़ी करना छोड़ो और भक्त बनो। ओके। जी प्रभु। यस। नारायण ब्रो, आपको कुछ बचा है? हाँ प्रभु जी, आचमन आप बता दीजिए ना, कुछ बहुत सारे होते हैं ना, वो सिर्फ हम घर में उतना ही करेंगे तो हो जाता है क्या? 3 बार ऐसे पानी पी के छीट लेना अपने ऊपर, वही गंगा माता वाला मंत्र बोल के। है ना? पहले मैंने वीडियो भी भेजा था, है ना? पहले पानी में इन्वोकेशन करते, गंगे च यमुने चैव वाला मंत्र, और वो दिन में एक ही बार करना है पानी लेने के बाद, ऐसा नहीं हर बार करना होता है वो, है ना? क्योंकि इन्वोकेशन तो एक ही बार करते हैं, और फिर बीच में पानी लेकर और पानी को देख करके ओम केशवाय नमः, और ये वाला जो हिस्सा है ब्रह्म तीर्थ, है ना, यहाँ से जल पी करके, और उसमें सू शू की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, है ना? ऐसे करके नहीं, है ना, साइलेंटली होना चाहिए, और पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा लेकर के ओम केशवाय नमः ऐसे करके, और फिर हाथ को दोबारा पानी छिड़क के शुद्ध करेंगे। तो ऐसे करते हैं, बस नॉर्मल सा है, सिंपल है। नहीं प्रभु जी, बहुत सारा होता है ना, पाँव का, हाथ का, मैं एक बहुत लंबा वाला देखा था। तो क्यों देख रहे हो लंबा वाला? मैंने बोला लंबा देखने के लिए। तो हमको वो नहीं करना ना? नहीं, वो टेम्पल स्टैंडर्ड्स है ना? देखो, करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हम घर में इतने स्टैंडर्ड्स जो है वो हमारे पास कई बार समय भी नहीं होता, समय की पाबंदी रहती है ना? तो जितना हो सकता है हम उतना करते हैं। ओके, ठीक है। सो आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो आज की क्लास फिर हम यही समाप्त करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण